Good morning students. In this video we will discuss some questions of exercise 10.1 and 10.2. We are going to revise this exercise. NCERT exercise 10.1 of class 10. How many tangents can a circle have? कितने टेंजेंट हो सकते हैं? देयर कैन बी इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स टू अ सर्कल. वो बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं क्योंकि देखो बच्चों, सर्कल में एक पॉइंट है यहाँ पर और उसके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं. देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स इन बिटवीन द टू पॉइंट्स. Suppose you are taking these 2 points, then there are infinitely many points between these points. So how many tangents can you draw? We can draw infinitely many tangents at 2 points. बहुत सारे हम टेंजेंट्स बना सकते हैं एक सर्कल के ऊपर, क्योंकि सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं. Therefore infinitely many tangents. Students, first of all I want to tell you the definition of tangent once again. What is a tangent? The line that touches the circle at only one point is known as the tangent. जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल. Now second question is fill in the blanks. A tangent to a circle intersect it in. कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा? It intersect at only one point. अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई. तो a tangent is a circle intersect it in one point only. A line intersecting a circle in 2 points is called a secant. जो लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी 2 पॉइंट्स पर, जैसे कि मान लो ये सर्कल है और सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी यहाँ पर और यहाँ पर, then this line is known as a secant. सीकेंट लाइन वो है जो सर्कल की बाउंड्री से बाहर चली जाए. अब जैसे कोड है तो कोड यहाँ पर सर्कल को 2 लाइंस पर मीट तो करेगा, 2 पॉइंट पर मीट तो करेगा बाउंड्री के ऊपर, लेकिन वो बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा. इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कोड बोलेंगे. और इसको हम क्या बोलेंगे? सीकेंट बोलेंगे. क्योंकि सीकेंट जो है वो बाउंड्री से बाहर चला जाएगा और कोड जो है वो बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा. क्लियर? Now third point is a circle can have dash parallel tangents at the most. सर्कल में 2 ही पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं. जैसे सपोज करो ये सर्कल है तो पैरेलल टेंजेंट की अगर बात की जाए तो ये एक टेंजेंट आएगा और उसके पैरेलल यहाँ पर एक टेंजेंट आएगा. क्योंकि अगर हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे then that tangent will not be parallel to this tangent. Clear? So there are at the most 2 tangents which are parallel to each other. The common point of the tangent to a circle and the circle is called a point of contact. अब ये जो पॉइंट है जहां पर टेंजेंट और सर्कल आपस में टच करेंगे, that point is known as point of contact. This point is known as point of contact. Clear? Now third question. First question था how many tangents can a circle have? Second question में fill in the blanks. And third question, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q. So that OQ is equal to 12 cm the length of the PQ. हमें length of the PQ find करनी है. So students, here the radius is given. So the figure is here. The radius is 5 cm and the distance of the point Q from the center is 12 cm and you have to find the distance of PQ. PQ distance you have to find. Students, we know that the tangent is perpendicular to the रेडियस. यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसलिए QOP इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. इफ दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल देन QP इज द QO इज द हाइपोटेन्यूज. क्योंकि 90 डिग्री के सामने यहाँ पर क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज आएगा. सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ QP बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम. सो हियर PQ is equal to 119 सेंटीमीटर. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमें ये वैल्यू मिली.
Question number 4. Draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is the tangent and the other is a secant to the circle. अब इसने क्या बोला? Draw a circle. एक सर्कल बनाओ and two line parallel to a given line. एक लाइन हमें गिवन है और उसके पैरेलल हमें दो लाइंस क्रिएट करनी है सच दैट वन इज टेंजेंट, एक जो है टेंजेंट होनी चाहिए एंड अदर इज अ सीकेंट टू द सर्कल, जो दूसरी है वो सीकेंट होनी चाहिए सर्कल के. सो लाइन एम इज पैरेलल टू द गिवन लाइन एन एंड अ लाइन एल विच इज सीकेंट इज पैरेलल टू द गिवन लाइन एन. तो ये सीकेंट हमें गिवन लाइन ये है, इस गिवन लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन बनाई जो कि सर्कल के टेंजेंट हो गई और यहाँ पर एक और लाइन बनाई पैरेलल जो कि इस लाइन के पैरेलल है, लेकिन वो कैसी बनी? सीकेंट टू द सर्कल. सीकेंट क्यों? बिकॉज इट हैज इंटरसेक्टेड द सर्कल एट 2 पॉइंट्स. ये 2 पॉइंट पर इसने इंटरसेक्ट किया और बाउंड्री से बाहर भी चली गई. देयरफॉर दिस इज सीकेंट टू द सर्कल एंड टेंजेंट टू द सर्कल मींस इट टचेस द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट. देयरफॉर इट इज नोन एज द टेंजेंट टू द सर्कल. आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन अगेन एंड अगेन इसलिए ताकि आपको याद हो जाए. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 10.2. ओके. फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर. पॉइंट Q से टेंजेंट की लेंथ कितनी है? 24 सेंटीमीटर. सो हियर इज द फिगर, Q इज द पॉइंट और यहाँ से Q से लेकर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक हमें टेंजेंट की लेंथ लेनी होती है. ऐसा नहीं है कि आप Q से लेकर यहाँ तक चले जाओ या फिर आगे मूव कर जाओ तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ ऑफ टेंजेंट लेना है. ऐसा नहीं है बिकॉज यहाँ पर आपको क्या करना है? एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक लेंथ ऑफ टेंजेंट काउंट की जाएगी. सो QP इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. वन मोर इंफॉर्मेशन इज गिवन एंड द डिस्टेंस ऑफ द Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर. तो Q की सेंटर से डिस्टेंस कितनी थी? 25 सेंटीमीटर थी. द रेडियस ऑफ द सर्कल, अगेन वी नो दैट tangent is perpendicular to the radius. So this angle is 90 degree and in front of 90 degree there is hypotenuse. It means OQ is the hypotenuse. OQ square is equal to QP square plus PO square. हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. So हमें क्या मिलेगा? OQ square is equal to PQ square plus PO square. क्लियर? तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमें OP की वैल्यू कितनी मिली? 7 सेंटीमीटर. और OP क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल. सो रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. Now question number 2. In the figure, if TP and TQ are the two tangents to the circle with center O so that POQ is equal to 110 degree, then PTQ is equal to. तो PTQ क्या होगा? फिर से एक बार क्वेश्चन देखें. इन फिगर इज ऑलरेडी गिवन. इफ TP and TQ are the two tangents, TP and TQ are the two tangents and this angle is 110 degree, then what about this angle? ये एंगल कितना होगा? So students, this is a quadrilateral. TPOQ is a quadrilateral. So this angle plus this angle plus this angle plus this angle is equal to 360 degree. Angle P is 90 degree, angle Q is 90 degree. So you can put the value 90 and 90. So 90 plus 90, 180. 180 plus 110 is equal to 290. So यहाँ इसको x माना तो 360 में से अगर हम 290 माइनस करेंगे तो 110 आंसर आ जाएगा. So this is one method of solving this question by applying angle sum property of the quadrilateral. If you want to do with another method, then what will be that another method? You can see that opposite angles of this quadrilateral are supplementary because this is 90 degree, this is 90 degree, तो ये दोनों 180 डिग्री बनेंगे. इसी तरह से ये और ये दोनों भी आपस में 180 डिग्री बनेंगे. और ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे यहाँ पर वो कितने डिग्री के होंगे? 180 डिग्री के. सो स्टूडेंट्स 110 प्लस x इज इक्वल टू 180. क्लियर? सो हमने 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 लिया. सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री.
Now question number 3. If tangent PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA is equal to. दो टेंजेंट हैं PA और PB, मतलब P एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ पर लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे के साथ एंगल बनाया. PA एंड PB आर इंक्लाइन टू ईच अदर, दोनों टेंजेंट जो है वो आपस में एंगल बनाते हैं. इंक्लाइन मीन्स दे आर मेकिंग एंगल विद ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल POA इज इक्वल टू कितना होगा. क्लियर. सो यहाँ पर देखो, ये एक आपके पास फिगर है, यहाँ पर P, ये पॉइंट, इस पॉइंट ने PA एक टेंजेंट बनाया, दूसरा पॉइंट उसने ये बनाया, PB एक टेंजेंट बनाया, एंड दे आर इंक्लाइन टू ईच अदर विद एन एंगल ऑफ 80 डिग्री. देन दे आर आस्किंग अबाउट द एंगल POA. POA मीन्स दिस एंगल दे आर आस्किंग अबाउट. क्लियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्ट this radius also and find this whole angle. इस whole angle को find करो. So in previous question I have told you that this angle plus this angle is 180 degree. So students, if this angle is 80 degree then this angle is 100 degree. ये पूरा का पूरा एंगल जो है वो 100 डिग्री का आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक. But we have to find this half angle only. If this whole angle is 100 degree then this angle is 50 degree. क्लियर. तो 50 डिग्री इसका आंसर आएगा. बट हाउ कैन यू से दैट दिस एंगल इज हाफ ऑफ द होल एंगल. सो स्टूडेंट्स, फॉर दिस यू हैव टू प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट. हाउ विल यू प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट. PA is equal to PB because length of the tangents from an external point is always equal. ठीक है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ हमेशा इक्वल होगी. सो PA is equal to PB आ जाएगा. यहाँ पर PO कॉमन आएगा. So PO is common and this angle is 90 degree because we know that the tangent is perpendicular to the radius. This angle is also 90 degree. So according to which criterion? According to RHS criterion, the triangle POA is congruent to the triangle POB. If these two triangles are congruent, then this angle is equal to this angle. It means both angles are equal. Therefore x plus x is equal to 100. मैंने ऑलरेडी इसको कैलकुलेट किया था 80 और 100, क्योंकि ये और ये एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री. सो x plus x is equal to 100, 2x is equal to 100 and x is equal to 100 upon 2 is equal to 50. So this angle is 50 degree. This is question number 3. Now question number 4. Prove that the tangents drawn at the ends of the diameter of the circle are parallel. You have to prove that these two tangents are, जो डायमीटर के एंड पर बनाए जाएंगे, ends of the diameter, जो डायमीटर के एंड पर टेंजेंट बनाए जाएंगे, that tangents are parallel to each other. You have to prove that. Okay students, you very well know that the tangent is perpendicular to the radius. It means OA is perpendicular to this line. So angle 1 is 90 degree. Here again OB is the radius and OB is perpendicular to the tangent. So angle 2 is 90 degree. Since these are alternate interior angles, clear, and these alternate interior angles are equal, therefore this line is parallel to this line. जब alternate interior angles equal हो जाएंगे तो lines क्या होंगी, parallel. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5. प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मीन्स वेयर टेंजेंट टू द सर्कल एंड सर्कल बोथ टचेस ईच अदर. दोनों एक दूसरे को जहां पर टच करेंगे, दैट पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर. तो जो भी परपेंडिकुलर होगा, जो कि टेंजेंट के ऊपर होगा परपेंडिकुलर, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर ही परपेंडिकुलर आएगा. तो हमें प्रूव करना है कि दिस लाइन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. सो हाउ विल यू प्रूव दैट. स्टूडेंट्स, यहाँ पर ABY एंगल, ये वाला एंगल जो है वो है 90 डिग्री का. इसी तरह से OBY, ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का. तो ये एंगल और ये एंगल दोनों ही 90 डिग्री के हैं. तो रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट.
तो इसका मतलब है कि इस एंगल और इस एंगल को प्लस करेंगे तो ये दोनों एंगल प्लस करके कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। अगर ये 180 डिग्री है तो ए बी ओ ये क्या होंगे, कोलिनियर, क्योंकि ये ए बी ओ क्या बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि इसका सम और इसका सम कितना आ गया, 180 डिग्री, इसलिए ये दोनों ही बनाएंगे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तीनों पॉइंट ए बी और ओ तीनों स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इट मीन्स अगर ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी जो परपेंडिकुलर हमने टेंजेंट के ऊपर बनाया था वो कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। देयरफॉर ए बी पासेस थ्रू द सेंटर। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लें। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर कॉपी पर बता देती हूँ करके। जैसे आपके पास ये सर्कल है, यहाँ पर टेंजेंट बनाया और ये परपेंडिकुलर आपने बनाया, तो ये 90 डिग्री का एंगल। अब इसको आगे इंक्रीज कर दो। सपोज करो कि ये पॉइंट O है तो ये एंगल भी 90 डिग्री का, तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और 180 होने के बाद अब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो ए बी और O ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। ठीक है, सारे पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। देयरफॉर ए बी, और एक और थ्योरम हमने की थी कि OB इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड OB इज द रेडियस। तो ये अगर ये रेडियस है और A पॉइंट भी उसी के ऊपर लाई करता है, रेडियस वाली लाइन के ऊपर, तो ABO क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। और ABO कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 6. What is question number 6? The length of the tangent from a point A at a distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius of the circle. Radius find करना है। Length of the tangent from a point A at a distance of 5 cm from the center. जो पॉइंट A है उसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी है, 5 सेंटीमीटर। सो मैंने यहाँ पर ये देखो 5 सेंटीमीटर, ये पॉइंट A लिया, ये सेंटर लिया, इसकी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। क्लियर? लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास लेंथ ऑफ द टेंजेंट 4 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द OP, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगेन वी नो दैट tangent is perpendicular to the radius, therefore this angle is 90 degree. This angle is 90 degree. Clear? So 90 डिग्री के सामने क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज AO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पर मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। सो इसकी वैल्यू पुट करके मेरे पास यहाँ पर आंसर कितना आ गया, OP इज इक्वल टू 3। क्लियर? सो रेडियस इज इक्वल टू 3. So students, revise all these questions once again. In next video we will revise question number 7 to question number 12 of exercise 10.2.